Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today I will discuss about the TCS interview structure for Ninja and digital candidates. How to prepare for TCS interview as the TCS got already got declared, and your interview process will be started from 14th September. Okay, so I will discuss about the TCS interview, how the TCS conducts its interview for its Ninja and digital candidate, what are the steps and how to prepare for interview. Okay, first of all, the TCS interview divided into the three parts, and the parts are: one is technical interview, after that managerial interview, and then HR interview. Okay, the sequence may be different for everyone. Okay, but the structure will be same, like the three round surely you conducted in the TCS interview. uh, in some cases, first managerial round is conducted, after that technical round, then HR round. In some cases, mostly in 60% cases, first technical round is conducted, after that managerial, and then HR. I will give all the source from where you can prepare for your technical interview. Okay, the weightage of technical interview is very high. ओके, टेक्निकल जो इंटरव्यू होगा उसका वेटेज हमेशा हाई होगा, उसके बाद जो मैनेजरियल राउंड होगा उसका वेटेज होगा, उसके बाद जो आपका HR राउंड होगा. ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है कि टेक्निकल राउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो I will guide you how to prepare for your technical round for CS and non-CS student, for TCS and Ninja and digital candidate. Okay, I will give all the instruction in this video. First of all, this is the structure of interview, and this is how to prepare for technical interview, CS and non-CS student. First of all, prepare your resume. Mention all those things in which you are sure of, confident about. ओके, सो शुरू में आपको क्या करना है, अपना रिज्यूम अच्छे से प्रिपेयर करना है और उसमें वो चीज़ें डालनी है जिसमें आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो. मीन्स जो चीज़ें आपको आती है सिर्फ वही डालनी है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालना आपने, क्योंकि यदि उससे क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर आप नहीं दे पाओगे, तो आपका बैड इंप्रेशन जाता है इंटरव्यू पर. And then prepare any project in the domain you are interested in. You already got prepared the project, otherwise यदि आपने नहीं प्रिपेयर किया तो आप प्रिपेयर एक अच्छा सा प्रोजेक्ट कर लीजिए. And prepare computer science core subject like OOPS, DBMS, SQL and SDLC. OOPS is very important, and DBMS and SQL. Okay, so the interviewer surely will ask question from OOPS like inheritance, polymorphism, encapsulation, and data hiding. All these questions are asked by interview in OOPS. Okay, what is object, what is class. सिमिलरली DBMS में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद SQL से की से रिलेटेड आपको क्वेश्चन, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सब आपको पूछेगा उसमें इंटरव्यू में. और एनी वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++, जावा और पाइथन, आप कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए. उसके बाद बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क, और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना एक बार. ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पूछ सकता है इसमें से. तो उसके बाद आपने क्या करना है, बेसिक्स प्रोग्रामिंग नॉलेज होनी चाहिए. इंटरव्यू कैन आस्क कोर ब्रांच रिलेटेड एज वेल. दिस इज इम्पोर्टेंट. ओके, इन द इंटरव्यू विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम कंप्यूटर साइंस. ओके, but if you are from electrical and mechanical, civil, electronics, okay, if you are from these branches, then he can also ask a question on your branch related. ओके, यदि आप मैकेनिकल के हो तो आपसे मैकेनिकल का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, सिविल के हो तो सिविल का. ये नहीं है कि कंप्यूटर का ही क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको वो भी प्रिपेयर कर लेने हैं. एंड मस्ट बी अवेयर ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाइक मशीन लर्निंग, IoT, साइबर सिक्योरिटी एटसेट्रा. और जब आपने लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उनका थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लेना एक बार. डाटा साइंस के बारे में पढ़ लेना, मशीन लर्निंग के बारे में, IoT, साइबर सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों के बारे में आप एक बार देख के चले जाना.
उसके बाद में भी मैं बताता हूँ कि आपने कैसे प्रिपेयर करना है। यदि आपके सीएस के स्टूडेंट हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज़्यादा आपको पता ही होगा। और यदि नॉन सीएस स्टूडेंट है तो आपको हाउ टू प्रिपेयर all these things. Okay, and first of all these are the resource for CS course object सब्जेक्ट के लिए। जैसे UPS है, UPS आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है? UPS का आपको जावा पॉइंट से प्रिपेयर करना है। आप UPS को जावा पॉइंट से प्रिपेयर करना। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये रहा, ये आप जैसे क्लिक करोगे ना www.javapoint.com, सो ये इंटरव्यू के क्वेश्चन निकला आएगा UPS का। तो इसी में से ही मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद आपको पूछ लेगा कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ UPS कॉन्सेप्ट, व्हाट आर द फोर मेन फीचर ऑफ UPS लाइक इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद व्हाट आर द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ UPS, लिमिटेशन ऑफ UPS। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग के बीच में डिफरेंस। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद आपसे पूछ सकता है इसमें जैसे व्हाट इज क्लास, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट, difference between class and structure, what are access specifier, private, public and protected, then what are the manipulator in OOPS and how does it works, then what are the rules of creating a constructor। ये सब इसमें 50 से 55 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। उसके बाद आपने DBMS, ओके, so you have to prepare DBMS from Java Point, ओके। उसके बाद SQL, जो DBMS है आपका जावा पॉइंट से पूछ सकता है क्वेश्चन। तो जावा पॉइंट से जो ये DBMS का क्वेश्चन है, जैसे व्हाट इज DBMS, व्हाट आर डाटाबेस, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डाटाबेस, व्हाट आर चेक पॉइंट्स, what is RDBMS and different database language like DDL, DML, DCL, TCL। उसके बाद what is relational schema, degree of relation, relationship, one to one, one to many। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी आप कर लेना इससे। एंड द नेक्स्ट इज व्हाट आर द 3 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल, व्यू लेवल। उसके बाद आपसे नॉर्मलाइजेशन का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, डीनॉर्मलाइजेशन, एंटिटी। उसके बाद आपको की से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ओके। एसिड प्रॉपर्टी, दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, डिलीट कमांड, ट्रंकेट कमांड, 2 टायर आर्किटेक्चर, 3 टायर आर्किटेक्चर। और जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है की में भी, प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, सुपर की। सो अब यहाँ से जावा पॉइंट से आप DBMS कर सकते हैं। उसके बाद आपका है जो SQL का, जो SQL आपको यहाँ से प्रिपेयर करना है, गुरु 99, ओके। देयर इज ए हाँ, अब यहाँ से SQL 50 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें इंटरव्यू का क्वेश्चन है जो 2022 का है। तो आप यहाँ से SQL पढ़ के जा सकते हो, DBMS और SQL दोनों। यहाँ से भी एक बार देख लेना SQL को। उसके बाद जो है SDLC ट्यूटोरियल पॉइंट, ओके। तो आप SDLC ट्यूटोरियल पॉइंट से प्रिपेयर कर सकते हो। tutorialpoint.com पे जाओगे तो यहाँ पे SDLC का आपको मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। एक बार आप उसको SDLC को प्रिपेयर करके चले जाना। उसके बाद आपका है कंप्यूटर नेटवर्क एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर नेटवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम, आप उसका जो लास्ट मिनट्स के नोट्स हो गए, आप गिक्स पे जाएंगे तो आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो कंप्यूटर नेटवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम। ये थियोरेटिकल है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। उसके बाद क्या है, जो बेसिक्स प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, ओके। सो दीज आर द सम बेसिक्स प्रोग्रामिंग क्वेश्चन दैट द इंटरव्यूअर कैन आस्क। write a program to swap 2 number without using third variable, okay, swapping of 2 numbers, and reverse a string,
आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रिंट करके दिखाओ कि 5 प्राइम नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, फिबोनाची सीरीज। आपको बाइनरी सर्च का भी प्रोग्राम पूछ सकता है। सो ये सब क्वेश्चन आपको बेसिक्स ही है जो प्रोग्रामिंग है, तो आप इनको भी एक बार देख लेना। 10-15 कोड है इनको। उसके बाद आपका जो ये सब टेक्निकल इंटरव्यू था। उसके बाद मैनेजरियल राउंड में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ तो थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछेंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। इसमें मैनेजरिंग राउंड में बेसिकली वो आपका इंग्लिश वगैरह स्पीकिंग स्किल्स चेक करते हैं, ठीक है। और आपसे कुछ भी पूछ सकता है मैनेजरियल राउंड में, तो कोई वो नहीं है इतना ज़्यादा कि थ्योरेटिकल वो मतलब मीन्स कि आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे या कुछ, वो इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन पूछेगा। मेनली इसमें मैनेजरियल में आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक होता है। उसके बाद आपका आता है HR राउंड। ओके, तो HR राउंड में आपसे पूछेगा जैसे कि आपका आप यू आर विलिंग टू रिलोकेट, तो आप रिलोकेट करने के लिए तैयार हो क्या। यदि आपका नाइट शिफ्ट लगा लेते हैं तो वो कर लोगे। जैसे मेरे से पूछा था कि हु इज़ द करंट CEO ऑफ TCS, जो मेरा एग्जाम वो इंटरव्यू हुआ था, तो राजेश गोपीनाथन। और आपसे पूछ सकते हैं कि आपको मेनली TCS के बारे में ही पूछेगा क्वेश्चन HR राउंड में, और कुछ आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, मोस्टली द पैटर्न फॉर TCS Ninja and Digital both are same, only little much difference in level. Okay, if you prepare all these questions, means all these topics from this website, then surely you will clear your interview. Okay, this is more than enough to pass in your interview. So thank you guys, please subscribe my YouTube channel, keep supporting, and best of luck for your interview. Thank you.